Good morning, students. I, Yogesh. I'm going to teach you in this video about MySQL. Actually, it is MySQL. We pronunciate it as a MySQL. So, in this video, you are going to learn about MySQL database. What is data? What is information? And what is DBMS? So, I think you know very well that what is DBMS. So, DBMS is Database Management System. सो इस वीडियो में आप लोग बेसिक नॉलेज पता करेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और इसके पीछे की जो माई सीक्वल है वो कैसे इसको हैंडल करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डेटा. सो व्हाट इज डेटा? सो डेटा मीन बेसिक रो fact about something which is not organized. For example, detail of some student which is not organized. So just like your name, uh, just like a student which his name is Aman, and we just followed by that particular city like Jaipur, Red, and 12th. Okay, so these all are the basic row and facts about that particular student, but it is not organized in way. Okay, so if we are taking it in organized manner, like the name is of student is Aman, the live in city which is Jaipur, and the house he is from is Red. Okay, and the standard in which he is studying like 12th. Okay, so whenever we organize a particular row or fact or data in an organized manner, so we known as a it is as a information. Okay, so now data item. So what is the meaning of data item? Each piece of information about an entity, such as the name of a person, age, address, name of the product or price, or is a data item. Okay, so these all are the basic small entities or small item. It is called as a data item. Okay, now, so what is the information? So information is a data which is in the form of organized way. So by that particular sentence you can get the information behind it. Okay, so this is known as a information. The data or a basic row in an organized manner, we call it as a information. Now what is a database? So database, a well organized collection of data that ensures safety, security and integrity of the data. Okay, so that particular way it is known as a database. Okay, so database होता क्या है ये हम लोगों ने जाना. अब मैं आपको बताता हूँ कि database में जो हम लोग चीज सेव करते हैं वो किस मैनर में सेव करते हैं. So here you can see that a particular table. So we stored our information in the database in the form of table. So there are the some rows and you can see as well as some column. Okay, so in the form of table we store our data in our database. Okay, so now we will talk about the database management system. So what is the DBMS? A comprehensive software that provides the essential service to create, manage and maintain the database. In short, a DBMS provides the mean of to store the data in database, to edit or delete the data stored, to search and analyze the data in the database. They also provide various safety and the security mechanism that ensure that in any case stored data will be safe and accessible. सो डीबीएमएस होता क्या है? ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कि ये सारी जो फैसिलिटीज है टू स्टोर द डेटा, टू सिक्योर द डेटा एंड टू स्टोर द डेटा फॉर द फर्दर यूज और फ्यूचर यूज. ओके, सो जो सॉफ्टवेयर इस सब चीजों मैकेनिज्म के पीछे जो वर्क करता है उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. सो हियर वी आर यूजिंग दैट एसक्यूएल. ओके, सो ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके, अब हम बात करते हैं RDBMS की. What is the mean of RDBMS? Relational Database Management System. So it is different from the previous as DBMS. Okay, so what is the difference between these two? So a database management system that confirms at least half of the rule 12 rule defined by the Dr. E.F. Code.
in his research document. In relational data model, the data is organized into table, row and columns. These tables are called relational. A row in a table represent a relation among the set of value. Since a table is a collection of relationship, it is generally referred to using the mathematical term relation. Okay, तो जो आप लोग यहाँ टेबल के अंदर ये जो रो देखते हैं, हम लोग इनको क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. ओके, सो टेबल के अंदर जो भी डेटा हम लोग सेव करते हैं वो सारे एक पर्टिकुलर किसी मैनर को, किसी इंफॉर्मेशन को शो करते हैं. ठीक है, सो जैसे कि जस्ट सपोज करो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रोल नंबर. ओके, यहाँ आएगा, इस कॉलम में आएंगे आपके स्टूडेंट नेम्स. ओके, इस कॉलम में हम लोग लिख देते हैं जैसे जस्ट सपोज क्लास. यहाँ लिखते हैं हम लोग हाउस. ओके, और फर्दर हम लोग और कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस कॉलम यू need to store, or you have to store that roll number of that particular student. इस कॉलम के अंदर आपको नेम सेव करना है, इस कॉलम में पर्टिकुलर उसका सेव करना है, क्लास सेव करनी है और हाउस. ओके, सो जस्ट सपोज हम लोग ऐसे सेव करते हैं ओके. ये चीज यहाँ पे ये देखिए, तो जैसे ये सिंगल, ये वाली जो रो है, ये जो रो है और ये जो रो है, हर रो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को शो करता है और एक रिलेशन को शो करता है. ठीक है, सो दिस इज द मीन ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, so now database system. So what is the database system? A system comprising the database and the database management system are simply referred as a database system. Okay, जरूरत क्यों होती है हमारे को इसको यूज करने की? हम लोग पहले क्या चीज यूज करते थे? हम लोग पहले यूज करते थे फाइल सिस्टम. जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आपके जो क्लास टीचर है वो फाइल रजिस्टर सिस्टम यूज करते हैं फॉर योर अटेंडेंस. ओके, सो जस्ट सपोज करो, पूरी अगर स्कूल का डेटा हम लोग रजिस्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है, और जस्ट वी वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 ईयर एगो स्टूडेंट. जस्ट सपोज करो कि किसी एक स्टूडेंट है जिसने 3 ईयर पहले स्कूल को छोड़ा है. ठीक है, अब हमको अगर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए और हम लोगों ने पूरा डेटा जो है हम लोगों ने रजिस्टर सिस्टम में या फाइल के अंदर हम लोगों ने स्टोर कर रखा है, तो हमको उसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे को प्रीवियस सारे रजिस्टर्स को निकालने पड़ेंगे. ठीक है, और फिर वन बाय वन करके चेक करना पड़ेगा उसके अंदर कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए. बट इफ यू आर यूजिंग दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम लोगों को क्या करना है? सीधा सा डेटाबेस में जाना है और क्या करना है? सर्च करके क्वेरी में लिखना है कि जस्ट सपोज वी वांट टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट डिटेल, ऑल द डिटेल. ओके, या तो उसका नाम लिखिए, या उसका रोल नंबर लिखिए, या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के. ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, तो ये जो इजी वे रहा, एक तो फराइस्टर फाइल सिस्टम में से पूरा डेटा निकालना पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज का, और एक जो वे है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेटाबेस को एक्सेस करना, तो इजी यहाँ रहता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोग यूज कर रहे हो अमेजोन, ठीक है, कोई भी अगर मोबाइल सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, ठीक है, जस्ट लाइक योर फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो वहां पे बहुत सारा आइटम का एक डेटाबेस रेडी रहता है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल यू कैन इजीली सर्च. ओके, आप लोग वहां पे सर्च में जाते हो, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में डालते हो, जैसे कि आप लोगों ने लिखा मोबाइल फोन, तो उसके डेटाबेस में जितने भी मोबाइल फोन से रिलेटेड सारे जो डेटा होगा वो आपको वो क्या कर देता है? शो कर देता है. ठीक है, सो ये एक यूज हो गया आपका डेटाबेस. तो इतने बड़े यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रोवाइड करवाना. ठीक है, और जैसे ही यूजर की नीड है उस हिसाब से आपको वो डेटाबेस को, आपको पर्टिकुलर डेटा को क्या करता है? आपको
प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, इसको हैंडल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज में लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये चीज होती है। सो एडवांटेजेस क्या क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, फर्स्ट वन। ओके, सो जस्ट सपोज इफ यू आर यूजिंग फाइल और रजिस्टर सिस्टम, ठीक है, टू एंटर द डेटा, तो गलती क्या होगी कि जस्ट सपोज करो कि लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने अगर डेटा, पूरी जो लाइब्रेरी जितनी भी उसके अंदर अगर बुक है, ठीक है, उसकी एंट्रीज को हमने स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम रखा। ओके, एक रजिस्टर बनाया है जिसके अंदर अलग अलग कॉलम, जैसे कि फर्स्ट वन हो गया आपका सीरियल नंबर, सेकंड बुक ऑफ नेम ऑफ बुक, फिर पब्लिशर का नेम, फिर ऑथर का नेम और पर्टिकुलर उसका प्राइस। ओके, ऐसे करके हम लोगों ने 3-4 कॉलम बनाए और हमने एक रजिस्टर मेंटेन करना चालू किया जितनी भी हमारी लाइब्रेरी में बुक है। अब डिसएडवांटेज क्या होगा इसका कि जस्ट सपोज करो कि वी जस्ट एंटर्ड द 500 books, okay, in that particular register, okay, और बाई चांस बाई मिस्टेक क्या हुआ कि वो पूरा जो बंडल है उसमें से कुछ बुक वापस जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं नेक्स्ट जो 500 है उसके अंदर वो बुक्स आ गई थी, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर होता है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिटेशन तक वो चीजों को याद रख पाता है, ठीक है। अब जैसे ही सपोज करो कि नेक्स्ट जो बंडल आया 500 बुक्स का, उसके अंदर बाय मिस्टेक प्रीवियस बंडल में से 2-4 बुक्स अगर हमने वापस उसके अंदर मिक्स कर दी किसी ने, ठीक है, तो वापस उस बुक्स उन बुक्स की वापस क्या हो जाएगी, उस रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर आपको बताने वाला नहीं है कि दी दैट पर्टिकुलर डेटा विच यू आर एंटर ऑलरेडी एंटर्ड। ओके, रजिस्टर कभी ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज था रजिस्टर सिस्टम का। और यहाँ पे हम जब यूज करते हैं डेटाबेस सिस्टम, तो यहाँ पे इसका एक एडवांटेज है कि क्या करता है ये, जैसे ही आप लोग प्रीवियस एंट्री को वापस एंटर करोगे, ओके, सो वहां पे एक अलर्ट बता देता है आपको, नोटिफाई कर देगा आपको कि दैट डेटा व्हिच यू आर इंसर्ट ऑलरेडी इंसर्टेड। ओके, सो जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट। ओके, जैसे ही आप लोग अगर किसी का नंबर अगर सेव करते हो, ठीक है, और अगर आप प्रीवियस जो नेम है, जैसे सपोज करो कि आपने एक कोई भी एक नेम है जैसे योगेश है, ठीक है, आप लोगों ने नेम सेव कर रखा है और पहले से ऑलरेडी वो सेव है, तो आपको वो नोटिफाई कर देता है कि इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा कि इसी में आपको सेव करना है या फिर अलग से कॉपी और बनानी है, ठीक है। तो अगर अलग अलग पर्सन है तो आपको अलग अलग करना है, और अगर सेम पर्सन है और अलग अलग नंबर है तो आप लोग सेम उसमें कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी यही क्या है, एक तरीके से इसका एडवांटेज है आपका डेटाबेस सिस्टम का। ओके, सो फर्स्ट वन था आपका रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। ओके, तो ये क्या करता है, डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंट एट द लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंस को भी आपका कंट्रोल करता है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है आपका डेटा फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। ओके, सो डेटाबेस आपको क्या करता है, शेयरिंग ऑफ डेटा की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। सो यू कैन शेयर योर डेटा एज इजी एज यू कैन। ओके, जैसे कि आप लोग अगर किसी फाइल को शेयर करोगे टू उसको कैरी करना, उसको शेयर करना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ फाइल यू कैन शेयर योर डेटा बेस इजीली। ओके, नाउ नेक्स्ट है एनफोर द एनफोर्स स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड बहुत सही है, मतलब कि ये बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है आपको, जिससे इसका यूज और इसकी नीड और बढ़ जाती है, ठीक है। सेंट्रलाइज डेटाबेस कैन एंश्योर द डेटा सिक्योरिटी। ओके, सो अगर जस्ट सपोज करो कि पूरे स्कूल का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, ठीक है, तो हम लोग जो भी एंट्री करते हैं उसकी सब सारी जो सिक्योर सारी एंट्री जो है वो सेंट्रलाइज उसमें जाती है, तो उसको सिक्योर करना इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू आप अलग अलग जगह डेटा को सेव करते हैं, ठीक है, ये चीज। तो सेंट्रलाइज जब भी हम लोग डेटाबेस सेव करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमको कम रिसोर्सेज की जरूरत रहती है, तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये जी। ओके, सो नाउ एग्जांपल ऑफ कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो what are the example of database management system? So we have MySQL, Ingres, ठीक है, Postgres, Oracle and DB2. Okay, so these all are the database management systems example. Okay, so ये सारे क्या करते हैं, आपको database management system की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज अबाउट द डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टपल और एट्रीब्यूट। ओके, सो टपल क्या होता है यहाँ पे और एट्रीब्यूट क्या होता है। सो जस्ट लाइक योर दिस टेबल। ओके, सो जैसे आप लोग यहाँ पे ये रो देख रहे हैं और जैसे आप लोग यहाँ पे ये कॉलम देख रहे हैं, सेम एज इट इज हम लोग बस यहाँ पे इनका नेम क्या होता है चेंज हो जाता है।
Okay, so here tuple mean a row in a relation is called tuple. So टेबल में जो आप लोग जिस चीज को रो बोलते हो वहां पे हम लोग इसी उस पर्टिकुलर रो को हम लोग यहाँ पे टपल नेम बोलेंगे. Okay, so in the database management system or whenever we use the MySQL, okay, so row is known as a tuple. Okay, and the attribute, what is attribute? A column in a relation is called as an attribute. Okay, so whenever we use the MySQL or any type of database management system software, okay, so a row is called as a tuple and the column is known as a attribute. Okay, सो अब बात करते हैं हम लोगों ने जान लिया कि डेटाबेस स्टोर कैसे होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, ठीक है, और हम लोग इस डीबीएमएस में इसको बोलते क्या है, टपल और रो. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे काम आने वाली कीज की. ओके, सो यहाँ देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कीज. आप लोगों ने जैसे कि ये प्राइमरी की पहले सुन रखा होगा जब आप लोगों ने यूज किया होगा माई एमएस एक्सेस. ओके, this is also a type of database software, okay, which is provided by the Microsoft Office. Okay, so there are the different type of keys. Okay, so first one is candidate key. So what is the meaning of candidate key? A set of one or more minimal attribute used to unique identify a tuple in a relation and which can act as a primary. Okay, तो देखो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी एक कॉलम के अंदर एंट्री करते हो या डेटा एंटर करते हो और उस एट्रीब्यूट सॉरी उस एट्रीब्यूट का एक उसकी एक खासियत ये है कि इस पर्टिकुलर कॉलम और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी एंट्री है वो सारी क्या है, यूनिक है. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक रिपीटिव एंट्रीज नहीं है. ठीक है, जो रोल नंबर है वो सबका अलग है. देखो नेम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है किसी भी पर्सन का, दो पर्सन का नेम सेम हो सकता है. ठीक है, क्लास सेम हो सकती है, बट रोल नंबर एक क्लास के अंदर सेम नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है ये क्या होगा, हर एक रो के लिए, हर एक रिलेशन के लिए अलग होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉलम आपकी हर पर्टिकुलर टपल की एंट्री को यूनिक रख रहा है, ठीक है, वो एज अ क्या कहलाता है, आपका कैंडिडेट की. ठीक है, a relation can have multiple candidate key. A table may have more than one candidate key but definitely has one and only one primary key. ठीक है, तो जो भी आपके एट्रीब्यूट हैं, जस्ट सपोज एट्रीब्यूट, जो भी आपके एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, आपके हर एंट्री को यूनिक रखा हुआ है. ठीक है, तो जस्ट सपोज करो कि एक क्लास के अंदर अगर 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट के नेम भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, नॉन रिपीटेटिव नहीं है कोई किसी का नेम, सबका अलग अलग नेम है. तो यहाँ पे ये रोल नंबर और नेम भी क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग जो एट्रीब्यूट है वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज को कैरी करेंगे. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ कॉलम इज नोन एज अ कैंडिडेट की. ओके, अब प्राइमरी की क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर जो भी यूनिक वैल्यूज को जो कैरी कर रहा है कॉलम, हम उसको ऐसा प्राइमरी की सेट कर देते हैं. ठीक है, तो जब भी किसी टेबल के अंदर हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, द पर्टिकुलर कॉलम और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट शुड बी कैरी यूनिक वैल्यू इन ईच रो. ओके, एंड इट कैन नॉट बी नल. तो नल मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए जो ब्लैंक हो. ठीक है, ये चीज होती है. ठीक है, तो एक कॉलम के अंदर कैंडिडेट की क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मतलब कि बहुत सारी हो सकती है. बट जब भी हम लोग सेट करेंगे किसी भी कैंडिडेट की को एज अ प्राइमरी की, तो वी कैन चूज ओनली वन एज अ प्राइमरी की. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेबल में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की but definitely has one and only one primary key. Okay, so we can have multiple candidate key in our table. Okay, but to set as a primary key we can only allowed to set one key as a primary. Okay, so ये होता है. So now देखते हैं primary key. What is the primary key? So a candidate key that is a primarily chosen to unique identification of a tuple in relation. Okay, सो आइडेंटिफिकेशन के लिए जब भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की को चूज करते हैं प्राइमरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की. ए प्राइमरी की इज ए फील्ड इन ए टेबल दैट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड. ओके, सो it has that particular relation unique value. Okay, so every database table should have a column or a group of column designed at the primary key.
the value of key hold should be unique for each record in table. Okay, so value of this key hold should be unique, मतलब कि क्या होगा, आपकी जो पर्टिकुलर जो की है उसके अंदर हर वैल्यू जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी. ओके, सो दिस इज द मीन ऑफ प्राइमरी की. द पर्पस ऑफ प्राइमरी की क्या होता है इसका, द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल. ओके, सो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब क्या होगा आपका, ये टपल मतलब कि हर रो. ओके, सो हर रो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे रोल नंबर 1 है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम क्या है, अमन, ठीक है, कौन सी क्लास के अंदर है, 12th में, और हाउस किससे रिलेट करता है, रेड हाउस से. ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है इसके अंदर. ठीक है, जस्ट लाइक सेक्शन क्या हो जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी. ओके, कन्वीनियंस क्या होता है इसका, बाय बस आ रहा है या बाय कार या फिर प्राइवेट व्हीकल है, वो सारी चीजें. तो बहुत सारी डिटेल हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें. ओके, सो द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल. नाउ अल्टरनेटिव की. ओके, सो हम लोगों ने देखा कैंडिडेट की और प्राइमरी की. सो अब देखते हैं हम लोग अल्टरनेट की क्या होता है. तो कैंडिडेट की दैट इज दैट नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की आर अल्टरनेट की. ओके, सो जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि एक टेबल के अंदर हम लोग मल्टीपल कैंडिडेट की रख सकते हैं या मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है. सो देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट की इन अ टेबल. So if we choose one key as a primary key, so other one is or other are the call as a alternate key. Okay, so just suppose we have three key. Okay, so just suppose we have three key. Okay, so just suppose करो ऐसा है जैसे ये तीन कॉलम है और ये तीन एज अ कैंडिडेट की कहलाएंगे. ओके, और हम लोगों ने क्या किया है, we just set as a first attribute as a we just set a first attribute as a प्राइमरी की. ओके, सो बाकी के जो कैंडिडेट की रह जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके अल्टरनेट की. ओके, सो अल्टरनेट की, द कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की आर द अल्टरनेट की. ओके, सो ये था आपका. सो इस वीडियो में अभी तक आपने देखा द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस, डेटाबेस होता क्या है, क्यों यूज में लेते हैं हम लोग इसको, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये सारी चीजें. ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द MySQL. सो MySQL होता क्या है. So it is an open source RDBMS software that is uses structured query language. Okay, it is available free of cost. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर फ्री है आपके लिए, कोई पे की जरूरत नहीं है इसको, ये ओपन सोर्स है. ओके, सो की फीचर्स क्या 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 होते हैं आपके यहाँ पे MySQL के, हाई स्पीड, easy of uses, availability available free of cost, support standard based SQL. ओके, स्टैंडर्ड बेस्ड एसक्यूएल मतलब कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ओके, तो जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हम लोग काम करते हैं, ये सारे क्या होते हैं, क्वेरीज पे डिपेंड करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो जो भी डेवलपमेंट होता है यहाँ पे वो प्रोग्राम पे डेवलपमेंट प्रोग्राम बेस्ड होता है. ठीक है, और हम लोग जब भी बात करेंगे माई सिक्वल की, तो जो भी हम लोग कोड लिखेंगे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं. ओके, now provides portability, so you can use in a different type of platform or different type of gadgets, that particular MySQL. Okay, high security होता है, provide many data types. Okay, and handle large database. Okay, ऐसा नहीं है कि आपका एक small database तक ये limitations है इसकी, so you can handle or you can manage that large database by this software or by this MySQL. Okay, तो आप लोगों ने अभी तक देखा डेटाबेस के बारे में. ओके, व्हाट इज द डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द MySQL. ओके, एंड द व्हाट इज MySQL एंड इट्स की फीचर. ओके, so in next video, I think it's enough for the now. So in next video, you will learn about more what the MySQL. ओके, सो हम लोग MySQL कैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिकल थिंग्स कैसे होगी, कैसे कोड करते हैं, कैसे यूज में लेते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं. ओके, सो टिल देन you can read this PDF. Okay, so this is your NCERT book. Okay, अगर आप लोगों ने बुक ले ली है, परचेज कर ली है तो वेल एंड गुड है. बट इफ यू स्टिल नॉट परचेज दैट बुक ऑफ योर IP सब्जेक्ट, ठीक है, सो यू कैन प्रेफर दिस PDF. ओके, सो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, आप लोग इसके अंदर आप लोग इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, सो व्हाट इज द फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है.
तो आप लोग एक बार इसको देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द माई सीक्वल. So till then, stay happy and stay safe and subscribe this channel. Okay, so goodbye.